Good afternoon, everyone, and welcome to the orientation session for SBR March 2024 exam. We are going to talk about SBR today. But before that, before SBR, because many students here are going to study from me for the first time, and that too for a P-level paper where I have never advertised anything much. So just to bring some clarity to you all, my core has been FR. And SBR being an extension to it, you can say this is my core, but because I was truly busy with skill level papers and P level papers, for me, they are continuously going. But I could not get time to publicize SBR much. How will we go ahead? हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पूरे क्वार्टर को स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे कैसे आप टेस्ट देंगे, everything we are going to discuss here. But before I discuss, let me tell you some of the weaknesses I may carry. This should come in the video in the first instances before you make up your mind. The first problem which I carry, I do not give anything as important in the syllabus. I'm so sorry and apologetic for that, but no sorry at all. I'll tell you why. See, this is a professional course. We do not know from where the examination paper will be created. When a student fails at 48 marks, तो ऐसा लगता है कि यार ये 2 नंबर कितने क्रूशियल होते हैं. When he fails at 49, then the relevance of 1 mark hits your mind. That means every concept matters. शायद जो छोड़ के गए अगर वो किया होता तो 49 की 50 बन जाते and good 15,000 की फीस examination fees बच जाती. So that is why if you are expecting that I will give you some important concepts, I will not do that. That's my biggest problem and people hate me for this. But I am not going to change my systems because there have been many instances where the past pattern of the papers where the important topics were not there in the exam and something out of the blue moon came. So we have to be prepared कि कहीं से भी कुछ भी आएगा. I'll tell you another reason why I don't want to create that misconception in your minds कि कुछ भी important होता है. After SBR, probably max to max 6 months or 9 months, you will be an ACCA member or ACCA affiliate. And immediately after this, you will be working with renowned names, big fours, or maybe very good companies where you will be directly dealing with the clients. If at this point of time I tell you or you expect कि मैम इसमें से क्या छोड़ सकते हैं वो बता दो, that means I am not creating good professionals. So at this point of time you will crib कि मैम तो कुछ बता ही नहीं रही है important, मैम तो कुछ बता ही नहीं रही है कि ये छोड़ सकते हैं. अभी तुम मुझे बहुत गालियां दोगे, कोई बात नहीं, दो. But when you will get placed, that time I get many messages of these students कि मैम उस टाइम ना बहुत ऐसा लगता था कि आप ना बिल्कुल भी कुछ कटवा नहीं रहे हो. But today the interviewer asked me the questions from that area which was not expected at all. बच्चे ये लिख के भेजते हैं अब. So ये मेरी आदत भी रही है because we have seen how the industry works. We cannot identify कि आपकी जिंदगी में क्या काम आएगा, क्या काम नहीं आएगा. So let's first dedicate ourselves to this practice कि हम ये important और ये छोड़ देंगे, ये पिछले अटेम्प्ट में आया है इसलिए इस बार नहीं आएगा. Please forget this practice. Forget this. And I very proudly say this. I do not have a very big batch of SBR. Maximum 25 to 30 students होते हैं जिसमें से 10-12 बैठते हैं and out of those 10-12, 9 to 10 pass. I'll show you the result also. Every time. I am known for my crookedness because I don't give anything ready-made. ये बिल्कुल नहीं मिलेगा कि बेटा ये छोड़ दो और ये कर लो. But then the result speaks. और मैं तो खुद बोल रही हूँ 10-12 बच्चे बैठते हैं हर बैच में से, उससे ज्यादा बच्चे पेपर ही नहीं देते बिकॉज दे समहाउ फील कि इंपॉर्टेंट तो हमें पता ही नहीं है, सारा सिलेबस करने में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा. सो दिस टाइम आई एम डिवाइसिंग समथिंग बेटर फॉर SBR बिकॉज दिस टाइम आई एम टेकिंग 2 बैचेस लेस. तो SBR के लिए एक स्पेशल प्लान है विच आई एम गोइंग टू अनाउंस राइट नाउ. बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई जस्ट वांट टू से इज be prepared that you have to do each and everything of the syllabus. इसलिए
बिकॉज अब यू आर गोइंग टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट. प्लेइंग ऑन फ्रंट फुट इज इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यूअर पूछेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ऑडिट प्रोफाइल में जाओगे. यू विल बी डीलिंग विद सिचुएशंस जो प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी भी उलझी हो सकती हैं. सो आई कैन नॉट बी अ जज कि हम ये चीज कर लें और ये चीज छोड़ दें. नो, फिर तो मैंने तुम लोगों को फिर तैयारी पूरी नहीं कराई. देन आई हैव फेल्ड. तो एक चीज तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि सेलेक्टिव स्टडी हम नहीं करेंगे. नंबर 2, डांट पड़ेगी मुझसे. अगर नहीं पढ़ोगे, टेस्ट्स नहीं दोगे, मॉक्स नहीं दोगे, मुझे रीजंस दोगे ना पढ़ने के, तो मैं डांट मारते देर नहीं लगाती. सो इन ऑल द बैचेस आई एम गिविंग दिस डिस्क्लेमर कि भाई अगर ये सोच रहे हो कि मैम इज गोइंग टू ट्रीट अस लाइक कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स, सॉरी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. आई एम ऑलरेडी 41 years of age, हैव नो प्लान्स कि मुझे इसको बिजनेस की तरह चलाना है. नॉट एट ऑल. यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स. और मुझे तुम्हें बाहर जाने से पहले ट्रेन करना है कि बाहर वाले उंगली उठाएं. दैट शुड नॉट हैपन. When you write an email, when you are writing the content of a question, I need to give a handhold to you. डांट खा के, मार्क्स कम दे के, I need to prepare you ताकि बाहर वाले तुम लोगों के काम पे हाथ ना उठा सके. Not beating you, they don't pinpoint you. So डांट पड़ेगी जी. इफ यू थिंक कि नहीं भाई हमें तो बहुत पैम्पर्ड एनवायरमेंट में और एज अ क्लाइंट डील करने वाला इंस्टीट्यूट चाहिए, देन यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस. यहां पे आपको नहीं पढ़ोगे तो कान भी खींचा जाएगा. नाउ कमिंग बैक टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पेपर. इफ यू आर नॉट वर्किंग, then I need to tell you certain facts. If you are already working, you must be aware of it. Now when you go for an interview, आपसे इंटरव्यूअर ऑडिट एंड अश्योरेंस के लिए इंटरव्यू कर रहा है, बिकॉज दिस इज द प्रोफाइल वेयर मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर हायर्ड, स्पेशली द बिग फोर्स, बीट आउटबुक्स, बीट सैंड मार्टिन. ये सब यूके क्लाइंट्स के लिए आप लोगों को ऑडिट एंड अश्योरेंस में ज्यादातर हायर करते हैं या फिर रिपोर्टिंग में करते हैं. सो बोथ वेज वी आर डीलिंग विद द पेपर विच इज वेरी क्रूशियल फॉर बोथ दीज प्रोफाइल्स. रिपोर्टिंग है तो डायरेक्ट ही आपको रिपोर्टिंग आनी चाहिए और हर स्टैंडर्ड की आनी चाहिए. इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड कि भाई ये तो पेपर में नहीं आता. अरे भाई जिंदगी में तो आएगा. देन यू विल कम अगेन टू निधि मैम कि मैम आपने उस टाइम ये पढ़ाया नहीं था, अब पढ़ा दो, मेरी नौकरी में चाहिए. वी कैन नॉट अफोर्ड दैट यार. तो ये लाइफ की ट्रेनिंग है, पेपर पास होने की भी ट्रेनिंग है. ठीक है. नाउ द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग द इंटरव्यू, सबसे पहली चीज आएगी, आप ऑडिट करने जाओगे, देयर विल बी सर्टेन ट्रांजैक्शंस जहां पे मोस्ट लाइकली द ऑडिटी और द क्लाइंट इज गोइंग टू डू सम रॉन्ग अकाउंटिंग. हाउ विल यू जज इफ द अकाउंटिंग इज रॉन्ग अंटिल एंड अनलेस यू योरसेल्फ नो कि उसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? आप पता लगा ही नहीं पाओगे. यानी ये इंटरव्यू में ही निकल के आ जाएगा कि आपने एसबीआर में क्या पढ़ाई करी है. आई नो कि ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में. देखो मेरे लिए भी क्लाइंटेल बनाना बहुत अच्छा है. पीछा छूट जाएगा मेरा, मैं तुम्हें बोल दूं ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो मेरे लिए और भी अच्छी चीज है. तुम प्रॉब्लम्स कम पूछोगे, इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगी. तुम सब जगह बोलोगे कि यार मैम ने हमारा एफर्ट बहुत आधा करा दिया. इट मेक्स माई बिजनेस, बट इट डिस्ट्रॉयज माई स्टूडेंट्स. इट डिस्ट्रॉयज देयर प्लेसमेंट्स एंड somebody else gets a right to say ये ACCS है आज के. अबे सिंपल सी चीज है तुम्हारे करिकुलम में, तुम्हें ये भी नहीं आती? क्या बोलोगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए मैम ने कटवा दी थी. So we are preparing for the life here with this paper. As an auditor, SBR is needed. Reporting profile, SBR is needed. एक प्रोफाइल होता है कंसोलिडेशन, SBR is needed. Its concepts are needed. Due diligence. You will be reviewing someone's work. Again, SBR is needed. कहां बचोगे? यानी इस पेपर में हमारे पास शॉर्टकट के लिए कोई चॉइस ही नहीं है. देयर इज नो चॉइस ऑफ एनी शॉर्टकट. अभी जो प्रीवियस बैच गया उन्होंने ये चीज बहुत कोशिश की थी, इंपॉर्टेंट बता दो, मेरे से डांट खा गए थे वो. बिकॉज इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आई टेल दिस, हम इस पेपर में शॉर्टकट्स नहीं कर सकते.
बिकॉज दिस पेपर आई हैव सीन हर जगह काम आता है. आई क्वालिफाइड माई CA in 2007. अब तुम मेरा एक्सपीरियंस काउंट कर लो 2007 से. आई हैव बीन इन EY, I have been a partner in one of the CA firms. Then I have been taking trainings. I have been into ACCA since last 5-6 years. इन सब जगह रिपोर्टिंग से कहीं बच नहीं पाई मैं. And this is what makes me an expert on this paper or FR. कहीं नहीं बचोगे. Being a chartered accountant, this is your core. तो इस पे हम सेलेक्टिव स्टडी तो जा ही नहीं सकते. इसलिए आपको सिलेबस पूरा करना है. That is my starting point, that I will not give you any important और पका पकाया thing कि भाई ये छोड़ दो और ये कर लो. हमें सब कुछ करना है. Yes, but there are certain changes in these systems which I saw from last quarter. I need to bring that. So that have been introduced, that I'm soon going to announce कि इसको हम कैसे डील करेंगे. But as of now, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं. इस पेपर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने से पहले, ये वो बच्चे हैं जो मैं आप लोगों को अभी कह रही थी, that out of 10-12 students 9 पास. और इनको जिनको देख रहे हो आप, इनके मार्क्स देखो, दे आर नॉट ऑनलाइन. 50 वाले नहीं है. पर मैं तो फिर भी आई स्टिल अप्रिशिएट 50 ऑल्सो, क्योंकि 50 की अहमियत या इंपॉर्टेंस वही समझता है जिसके 49 आते हैं. तो आई स्टिल पब्लिसाइज 50 ऑल्सो, क्योंकि 50 भी इज एन अचीवमेंट, राइट. सो अनन्या वेरी बिजी विद हर जॉब. कनिका एक प्रॉब्लम क्लास में नहीं आई. एक प्रॉब्लम क्लास में नहीं आई. हाँ, पर इसने मॉक्स वगैरह दिए. गुंजन बहुत डेडिकेशन से मॉक्स दिए. अनुज मॉक्स देता था. सुमन के मैंने मॉक्स चेक करे. मनी के मैंने मॉक्स चेक करे. मनी ने तो एंड मोमेंट पे पढ़ाई करी थी. ये सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए. एंड आउट ऑफ 11 to 12 स्टूडेंट्स सिटिंग इन द एग्जाम, 9 पास्ड. सो मैं तो खुद कह रही हूँ, आई एम नॉट हैविंग अ बैच ऑफ 100-200 स्टूडेंट्स. दिस वॉज द जून बैच. ये 30 स्टूडेंट्स का बैच था और इसमें से बैठे थे कुछ 15-16 बच्चे. सो SBR का रिजल्ट हैज ऑलवेज बीन गुड फॉर अस. और ये गुड होने के पीछे रीजन यही कहीं ना कहीं रहा है कि सेलेक्टिव स्टडी मैंने कभी प्रेफर नहीं करी. नेवर. दे हैव ऑलवेज स्टडीड पूरा पूरा. ठीक है. सो दीज आर द मार्क्स विच स्टूडेंट्स कैन गेट इन SBR, which I am expecting from you all also. अभी भी देखो यही हो रहा है कि we are there, only 50% are sitting live. और बैच पे देखोगे तो already 25 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है. Only 50% are live. ठीक है. I don't complain that. पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे तुम अपने पेस पे करो, चाहे तुम लाइव आके करो. Now this is the complete syllabus of SBR. For those who are giving SBR for the first time, SBR के पेपर में क्या होगा उसका थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड देती हूँ. इसको हम कैसे संभालेंगे वो बैकग्राउंड देती हूँ. This syllabus is quite long and that is why I stopped taking live batches. क्योंकि लाइव में इस कंटेंट को कवर अप करना मेरे लिए लिटरली वाज अ बिग बैटल. लेकिन ब्लेंडेड में तो मैं कर सकती हूँ ना, जितना बोलना है बोल सकते हैं. ये चिंता नहीं है कि बच्चे थक गए होंगे, आई नीड टू क्लोज द क्लास. ये चिंता नहीं है कि सैटरडे संडे के अलावा पढ़ा नहीं सकते. तो आप लोगों को भी ब्लेंडेड से फायदा ये लेना है कि सैटरडे संडे वेट करने की जरूरत ही नहीं है. यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर माई टारगेट डेट्स कम. डू इट फास्टर. दिस इज द बेनिफिट, राइट. अब इसमें वन थिंग इज देयर. सारांश, यस. मैम एक डाउट था. मैम ये बताओ कि FR रिवाइज करना पड़ेगा पहले? आती हूँ, उस पर आती हूँ. कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना. एक तो ना मस्ती बहुत करनी है. आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू एक्ट बोरिंग. मस्त रहो, चिंता नहीं करनी. These 4 chapters are not to be studied. Why? Because I am going to take SBR International. हम इंटरनेशनल करेंगे. जब आप एग्जाम बुक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप SBR UK वाला कर रहे हैं या इंटरनेशनल कर रहे हैं. वी आर चूजिंग इंटरनेशनल सिलेबस. दैट मीन्स हम UK गैप्स नहीं पढ़ेंगे. तो हमारे लिए सिलेबस सिर्फ 23 चैप्टर्स का ही है, उसके आगे नहीं. सिर्फ 23 करने हैं, सिर्फ 23.
नाउ एज सारांश आस्क्ड कि मैम ये तो सारा एफआर दिख रहा है, तो आई टेल यू द बैकग्राउंड। मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने बोला है कि भाई एसबीआर सेल्फ स्टडी कर लो, जिन्होंने एफआर मुझसे पढ़ी है या चलो जिनके एफआर के कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे हैं, एसबीआर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और मैं अभी भी ये बोल रही हूं, कर सकते हो। तो एसबीआर में क्या होगा, एफआर के कॉन्सेप्ट्स होंगे प्लस कुछ 40% उससे ऊपर होगा। दिस 40% इज न्यू, सो देयर इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो इस 40% को अपने आप से समझ लेते हैं, गुड। देयर इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि नहीं हमें तो उसमें भी हैंड होल्डिंग चाहिए, मैम आप जब तक कान खींचोगे नहीं तब तक हम पढ़ नहीं सकते। तो ठीक है, फिर पढ़ो। अब इस पूरे पेपर में ऐसा क्या है विच इज डिफरेंट फ्रॉम एफआर, दैट इज इट्स वे ऑफ राइटिंग आंसर्स। विथ पी लेवल पेपर्स आई सजेस्ट कि एसबीआर पहले लो। क्यों पहले लो? क्योंकि ये एफआर का एक्सटेंशन है। एसबीएल बिल्कुल ही नया पेपर है। ऑप्शनल्स में बच्चे को भी क्लियर नहीं होता है कि उसको क्या लेना चाहिए। तो जो दो पेपर्स की चॉइस है एसबीआर और एसबीएल की, इसमें से बेटर है कि एसबीआर पहले ले लो आप। एटलीस्ट देयर इज समथिंग टेक्निकल विच यू नो, कुछ तो बैकग्राउंड होता है पीछे का। इसलिए आई सजेस्ट कि एसबीआर से अपनी शुरुआत करो। नाउ कमिंग बैक टू एसबीआर की इस पेपर में है क्या। सबसे अच्छी बात यह है, दिस इज नॉट अ कैलकुलेटिव पेपर। दिस इज नॉट अ प्योरली कैलकुलेटिव पेपर लाइक एफआर। एफआर में आप पूरी बैलेंस शीट P&L बनाते थे, यहां आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहां सिर्फ इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ एक बैलेंस शीट के नंबर्स मिसिंग होंगे, आप उनको भरेंगे। P&L के कुछ नंबर्स मिसिंग होंगे, आप उनको भरेंगे। दैट मीन्स कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मेड इन एसबीआर। सो दिस इज नॉट अ कंप्लीटली कैलकुलेटिव पेपर। तो ये पेपर है क्या फिर? बेसिकली जो मैं बोल रही हूं वो आपको पेपर में लिखना है। क्वेश्चन ये पूछेगा, एक इंडिविजुअल ने एसी बेचा, एक शॉपकीपर ने एसी बेचा और इसका इंस्टॉलेशन अभी करवाना है और 2 साल की इसको मेंटेनेंस करनी है एसी की। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 3 थिंग्स हियर। 1, एसी बेचा। 2, इसका इंस्टॉलेशन कराना है। 3, आने वाले 2 इयर्स की मेंटेनेंस या सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी ने लिया है। हाउ दिस ट्रांजैक्शन शुड बी डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द शॉपकीपर। एसबीआर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब आप इसको आंसर कैसे करेंगे? कैलकुलेटिव पोर्शन को आप डालते हैं एक्सेल में और जो आंसर लिखने का पोर्शन है वो डालते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसमें सारा खेल लिखने का ही है, कैलकुलेशंस का नहीं है। नाउ अनदर प्रॉब्लम व्हिच कम्स अंडर एसबीआर, ये केस किस आईएएस के अंडर आता है? सबसे पहली चीज वो लोकेट करना। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू आईएफआरएस 15। तो सबसे पहली चीज ये लोकेट करना कि आईएफआरएस 15 का केस है ये। दूसरी चीज ये लोकेट करना कि अब मैं आंसर में क्या लिखूं। IFRS 15 has got 5 steps of recognizing revenue, identifying the customer's contract, then performance obligation, then transaction price. No. The examiner will deduct your marks here. ये 5 steps से related केस ही नहीं है। ये केस है, आप रेवेन्यू रिकग्निशन एट अ पॉइंट इन टाइम करेंगे या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेंगे। कुछ याद आया? एफआर में कुछ इस तरह का पढ़ा था आपने, याद आया? कुछ याद आ रहा है धुंधला धुंधला सा? देयर वॉज एट अ पॉइंट इन टाइम जहां पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है कस्टमर को, उसकी कुछ कंडीशंस थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जहां पे साइमल्टेनियसली सर्विसेज आर बीइंग गिवन एंड यूटिलाइज्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर। कुछ याद आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी डिस्कशन इज नॉट अबाउट द 5 स्टेप्स ऑफ बुकिंग रेवेन्यू, इट्स अबाउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट अ पॉइंट इन टाइम। इसको आइडेंटिफाई करना कि मुझे इस आईएफआरएस का कौन सा पोर्शन मेंशन करना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, दैट इज एसबीआर। सो इफ यू थिंक कि अगर मैंने आईएफआरएस का कंटेंट रट लिया मेरा एसबीआर पक्का पास हो जाएगा, यू आर मिस्टेकन हियर।
आपके यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स होते हैं। मतलब प्रोफेशनल स्किल मार्क्स में सबसे खतरनाक चीज होती है, अगर आपने इररेलेवेंट मटेरियल डाल दिया, द एग्जामिनर विल डिडक्ट योर मार्क्स। यानी प्रोफेशनल स्किल्स में स्टूडेंट्स लूज मार्क्स। हमें टू द पॉइंट लिखना है, करेक्ट चीज लिखनी है, इधर उधर का ज्ञान पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। तो मैं जब टेस्ट लूंगी, अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने 10 पेज भर दिए हैं, मैं प्रोफेशनल स्किल्स के अंडर आपके नंबर काट लूंगी। वाई? यू आर राइटिंग सो मच इररेलेवेंट, यू नीड टू राइट रेलेवेंट। तो यहां पे हम डिस्कशन क्या करेंगे कि रेवेन्यू रिलेटेड टू 2 year सर्विस एंड इंस्टॉलेशन, इज इट एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? नोबडी इज डिनाइंग कि ये IFRS 15 का केस है, रेवेन्यू का केस है। वो तो सवाल ही नहीं है यार। सवाल ये है कि इसकी रेवेन्यू बुकिंग करें कैसे, एक साथ ऑन द डेट ऑफ सेल कर दें, या फिर 2 साल जब तक सर्विस दी जा रही है उस पे 2 सालों में अपोर्शन करके रिकॉग्नाइज करें। दैट्स द क्वेश्चन। So with SBR, learning the IAS is step 1, identifying the requirement of the question is step 2, and step 3 is IFRS का कौन सा पोर्शन यहां पे लिंक करके लिखना है। दिस इज SBR। तो SBR में अगर आपका एक पार्ट भी गलत होता है, आपका अल्टीमेट आंसर गलत नहीं होगा, द एग्जामिनर विल गिव यू स्टेप मार्किंग। इसीलिए मेरे इतने सारे बच्चे पास हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्क्स बहुत मिलते हैं। हो सकता है आपने AC का ट्रीटमेंट गलत बताया, इंस्टॉलेशन का सही बता दिया, ही विल गिव यू मार्क्स। हो सकता है आपका कंक्लूजन गलत हो गया लेकिन आपका डिस्कशन सही था, ही विल गिव यू मार्क्स। So this is how SBR becomes very scoring. It has become my strength in terms of if 15 students sit, 10, 11 pass. ठीक है? So SBR का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। आपको कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी, कोई P&L नहीं बनाना, लेकिन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। यही तो हमें आगे दुनिया में चाहिए, रियल लाइफ में चाहिए। क्लाइंट बोलेगा जी इस साल हमने ऐसे ऐसे ये किया है, इसका रिकग्निशन एज एन ऑडिटर जब आप चेक करेंगे तो आप पूरी बैलेंस शीट बनाने नहीं बैठ जाएंगे, आप उसका ट्रीटमेंट चेक करेंगे कि ओके इट शुड फ्लो लाइक दिस, इफ इट इज फ्लोइंग लाइक दिस इट्स गुड टू गो, अदरवाइज मेंशन करोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उसके ट्रीटमेंट को, वरना करेक्ट करवाओगे क्लाइंट से। तो दिस इज व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एंड दिस इज SBR का पेपर। Now the whole syllabus will have certain new additions as compared to FR। जैसे आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में दिखेगी जो FR में आपको नहीं दिखी थी, रिलेटेड पार्टीज यहाँ पे दिखेंगी, अडॉप्टिंग न्यू स्टैंडर्ड्स, SMEs के करंट इश्यूज और शेयर बेस्ड पेमेंट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एग्रीकल्चर तो उसमें भी था, ठीक है। एंड दिस, ये कुछ नए चैप्टर्स हैं विच वर नॉट देयर इन FR, लेकिन ये पॉइंट वही है, नाउ यू आर बीइंग मेड रेडी फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इसलिए कुछ एडिशंस हैं। लेकिन ये एडिशंस ऐसे नहीं है जो आप बहुत घबरा जाओ देख के कि अरे मैं सेल्फ स्टडी कैसे करूंगा, ये तुम खुद पढ़ोगे ना तो भी तुम्हें समझ में आ जाएंगे। बस हाँ, आंसर कैसे लिखना है उसकी प्रैक्टिस में यू मे नीड सम गाइडेंस, और जो कोचिंग लेके पढ़ रहे हैं उनको तो फिर आई एम गोइंग टू पुल योर स्ट्रिंग्स एनी विच वेज। तो ये कुछ नए चैप्टर्स हैं। नाउ हाउ विल वी स्टडी, स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है LMS पे क्या क्या मिलेगा। सो दिस इज आवर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसके थ्रू आपको क्लासेस मिलेंगी। SBR की क्लासेस जैसे ही आप लेंगे तो आप फोल्डर पे क्या क्या देख पाएंगे, लेट मी शो यू एंड टेक यू थ्रू दैट। आप पहुंचेंगे हमारी वेबसाइट पे, ये वैल्यू एजुकेशन की वेबसाइट आई। जैसे ही आप एनरोल कराएंगे आपको कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे जो आप लॉगिन करके इस तरह से अपना एक प्रोफाइल बना के माय कोर्सेज पे जाएंगे। सो मैं सब पेपर्स पढ़ रही हूं इसलिए मैं सब में एनरोल्ड हूं, आपको सिर्फ SBR दिखेगा। नाउ विद SBR व्हाट ऑल थिंग्स विल यू गेट, लेफ्ट साइड में इसका सारा कंटेंट है। ये जो ओरिएंटेशन दिसंबर का दिख रहा है इसी जगह पे आज जो हम ओरिएंटेशन ले रहे हैं वो आपको नजर आएगा बाय टुनाइट। Zoom takes some 4-5 hours to give me this recording, फिर थोड़ी सी इसको एडिट वेडिट करके यहाँ पे डालेंगे। तो ये दिसंबर वाला इसलिए हटाया नहीं गया है, so that you know that this is the place where the orientation will be uploaded।
ये इस तरह का एक प्लानर होगा, वो आपको अभी दिखेगा, आप लोगों के लिए भी बनेगा, सेम टू सेम ऐसा एक प्लानर बनेगा आपके लिए रेलेवेंट डेट्स के साथ। Then September 2022 exam witnessed some changes in the SBR syllabus. वो मैंने यहां पे डाल दिए हैं। ये थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, उसके बारे में बात है। So whatever we are studying that is updated and as per the current syllabus. So need not to worry. अब जो इंट्रोडक्शन टू एसबीआर है दैट यू विल फाइंड हियर कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैम एक मिनट रुक जाओ आप, कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस कैसे होंगे। पहला जो क्वेश्चन आएगा वो पक्का कंसोलिडेशन से, ग्रुप अकाउंटिंग से आता है। दैट इज हाउ दिस पेपर स्ट्रक्चर इज ब्रीफ टू यू। उसके बाद में जो आप ये कंटेंट्स देखेंगे ये सब चैप्टर वाइज है, चैप्टर 1 2 3, देन चैप्टर 4। चैप्टर 4 को जब आप क्लिक करके ओपन करेंगे यू विल फाइंड चैप्टर 4 डन इन 2 पार्ट्स। Yeah. These are all studio recorded classes. You will not find any student talking in between. Hello and good morning. Good morning, ma'am. ठीक है, ये आ गया आपका चैप्टर 6 एग्रीकल्चर एंड इन्वेंटरीज। ओके मेरे देश की धरती। okay, anyways, so I have added some fun also into this, so you can see this। ठीक है, ये चैप्टर 11 तक आ गए, देन चैप्टर 12 13 14 15 16 17 एंड ऑल चैप्टर्स आर हियर। ओके, अब ये आगे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस क्या है। नाउ द मेजर क्वेश्चन व्हिच कम्स अप इज कि जब एग्जाम होगा सामने क्वेश्चन आएगा, हाउ डू आई डील विद इट। अलग अलग स्टैंडर्ड्स तो मैम आपने पढ़ा दिए, व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस। सो दीज आर सम पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस व्हिच आई हैव डन। कैसे, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन देम। लेफ्ट में क्वेश्चन चल रहा है, राइट में आई हैव ब्रीफ्ड कि हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। सो व्हेन यू स्टार्ट योर एग्जाम किट, आपको पहले ये 15 क्वेश्चंस यहां से देखने हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन। इससे क्या होगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन उठाना कैसे है उसकी अप्रोच पहले समझ में आ जाएगी। देन यू कैन पिक रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। डू नॉट डायरेक्टली पिक द एग्जाम किट, पहले एक बार इनको देख लो, उसके बाद में पिक करना। उसको भी कैसे करना है वो भी मैंने तरीका इनमें बताया हुआ है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड। One thing in SBR, you cannot complete a chapter and then do exam kit. That's not possible. Why? I'll tell you. Yes, Shruti, there is a way to comment on the videos, but इनका मेरे पास ना मेल आती है फिर, so it is difficult to get a solution for that. ये क्या होता है, जैसे आप LMS पे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरे को मेल भेजेगा, तो मेल पे ना क्वेरी रेजोल्यूशन दिक्कत होती है। We have created a WhatsApp group. You will be added to the WhatsApp group. जो क्वेश्चन कर रहे हो उसकी फोटो खींचो, उसके ऊपर डाल दो। आई विल ट्राई कि मैं एंड ऑफ द डे तक उसका सोल्यूशन उस पे व्हाट्सएप पे तुम्हें भेज दूं। ठीक है, सो बेटर टू बी कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप रादर देन LMS। LMS मुझे मेल पे मेल भेजता रहेगा और मेरा मेल बॉक्स वैसे ही भरा हुआ होता है। आई विल मिस दैट मेल एंड वोंट बी एबल टू आंसर इट थ्रू मेल। व्हाट्सएप पे अपन इस पे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो ये आ गए आपके क्वेश्चंस। मैं क्या बोल रही थी, भूल गई। तो आपको ये क्वेश्चंस पहले करने हैं। हाँ हाँ हाँ, याद आया। सो वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूं फिर एग्जाम किट कर लूं, ऐसा हो सकता है जैसा हम FR में करते थे? नहीं हो सकता। व्हाई? जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे, जैसे आप यहां देख रहे हो ना, ये 3, दीज आर 3 डिफरेंट केसेस। At one case, you will be discussing about a different standard. Second case will relate to a different standard. Third one will relate to a different standard and IFRS. तो अब ऐसे में क्या था, मैंने स्टार्टिंग में 1-2 बैचेस में एक ट्रैकर बना के दिया कि भाई इस क्वेश्चन में ये वाले IAS का क्वेश्चन है, तुम प्रैक्टिस कर लेना। बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि यार ये तो बच्चे को खुद आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, जो मैंने उनको चल के दे दिया कि ये वाले स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस ये है, यानी मेरी तैयारी गड़बड़ हो गई। तो इमीडिएटली मैंने उस ट्रैकर को विड्रॉ करा और बच्चों को यही बोला कि पहले तुम सारा मटेरियल पढ़ो, सारी की सारी स्टडी टेक्स्ट का जो भी कंटेंट मैंने दिया है उसको करो, देन यू हैव टू स्टार्ट डूइंग योर एग्जाम किट। बिकॉज एग्जाम किट के क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा। आई शुड नॉट गिव दैट रेडी हैंड, वरना तुम्हारा दिमाग इस चीज पे ट्रेन होगा ही नहीं कि ये कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, ये आइडेंटिफाई कैसे करें, क्या सिग्नल है इन चीजों के।
जैसे अभी जो लास्ट सितंबर वाला बैच गया, उनको बड़ी दिक्कत आती थी इस चीज में कि पता नहीं एक कौन सा स्टैंडर्ड था, वो उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम इसमें पीपी लगाएं कि लीजेस लगाएं, ये चीज समझ में नहीं आ रही। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही कंफ्यूजन था कि कहाँ पे लीज लगाएं, यानी राइट ऑफ यूज असेट क्रिएट करें, और कहाँ पे पीपी वाला IAS 16 लगाएं। हम हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई शोड देम वन ट्रिगर पॉइंट कि देखो जहां पे यूज 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 यूज, जहां इसकी बात हो रही है ना, इसका मतलब ये लीज के अंडर आएगा। दिस विल नॉट बी अंडर पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नहीं है ये बात हो रही है आपके यूज, राइट ऑफ यूज की। उसके अलावा बच्चों को कंफ्यूजन ये आने लगा कि इंपेयरमेंट का कैसे पता लगाएं, इट कैन बी डेप्रिसिएशन ऑल्सो। तो इंपेयरमेंट आता है जहां पे अननोन रीजंस की वजह से योर एसेट वैल्यू इज गोइंग डाउन, अननोन रीजंस, बट डेप्रिसिएशन विल बी फॉर यूजिंग इट। आप उसको यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन पिक्चर में आएगा। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिगर वर्ड्स जो आपको सिग्नल देंगे कि यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड लगाना है, इंपेयर करना है कि डेप्रिशिएट करना है। सो उसके बाद से मैंने फिर ये ट्रैकर देना बंद कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपको एग्जाम किट पिक तब तक नहीं करनी है जब तक आपकी स्टडी टेक्स्ट का कंटेंट डन नहीं हो जाता, ताकि हम जब एग्जाम किट उठाएं हम अपने आप आइडेंटिफाई करें कि ओके दिस रिलेट्स टू दिस स्टैंडर्ड, एंड देन चेक एग्जामिनर ने वही स्टैंडर्ड लगाया क्या। अगर वो नहीं लगाया है, कुछ और लगाया है, देन इट इज अ क्वेरी फॉर मी। फिर आप मुझे डालोगे कि मैम मैं तो इसमें ये वाला लगा रही थी, इन्होंने ये लगा दिया, ऐसे कैसे। देन इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू कि ऐसे। एम आई क्लियर कि कैसे जाना है। स्टडी टेक्स्ट कंटेंट फर्स्ट, देन एग्जाम किट, साइड बाय साइड एग्जाम किट, not workable in case of SBR. Am I clear on this? बताओ बताओ बताओ। Hello. Ma'am, quick question. Sorry, probably this is a stupid question, but No point. we keep कोई problem saying नहीं। exam kit, and then you said there were these 15 questions that we need to first go through before practicing the exam kit. So where is this exam kit? So exam kit is Kaplan exam kit. You need to purchase that. Acha, okay. Shruti, you are from CA background, right? Mm-hmm. Okay. So Shruti, what happens is we have two publishers with ACCA content. One is Kaplan, another is BPP. I follow Kaplan. Kaplan की books आती हैं। Kaplan की दो books होंगी. One is a study text, another is an exam kit. Study text में सारी चीजों के concepts होते हैं जो मैंने अपने notes में डाल दिए, classes में cover हो गया है. So study text you need not buy, but exam kit आपको चाहिए होगी. उसमें past exam questions होते हैं. This is a book. तो उसी के ही these are 15 questions. ठीक है? Oh, okay, got it. Thank you. Shruti, where are you based out of? मैं वैसे तो मैं दिल्ली से ही हूँ, but मैं I'm working in Malta तो in फिर Europe. वहां पे एग्जाम किट कैसे मिलेगी? वो Do one thing. online, ई बुक आ जाएगी उसकी, ई बुक मिल जाएगी। yeah. ठीक है? Okay. सो वील got it. हेल्प यू आउट इन कि कहाँ से लेनी है. सो यू विल हैव टू गो अहेड विद द सॉफ्ट कॉपी. Okay, understood. ठीक है? Okay, ma'am, Okay. thanks. जीशन, यस आई विल से, पता नहीं होता यार, 50 पे भी पास हो जाएंगे. 50 पहले एक बार रिजल्ट आ जाने दो, देन ज्वाइन. अभी नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना चालू करो. ठीक है? डोंट थिंक नेगेटिव कि मैंने दिसंबर में पेपर दिया एंड मोस्ट लाइकली मैं कह रही हूँ 50 पे यू विल बी पास. तो क्यों जबरदस्ती? ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स एसबीआर के रूटीन टेस्ट. अब ये रूटीन टेस्ट्स क्या हैं, इसको मैं अभी कवर करूंगी आपके पास, जो अभी दिखाऊंगी कि कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, दैट आई विल कवर अप. देयर आर 4 रूटीन टेस्ट्स. 4 के बाद में 5वां भी मैंने लिया था किसी बैच में. जब गुस्सा आ जाता है ना मेरे को कि ये पढ़ नहीं रहे हैं, तो 5वां भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है. तो द पॉइंट इज दीज रूटीन टेस्ट्स आर 1 क्वेश्चन टेस्ट्स. यानी एक क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का, और मे बी 10 मार्क्स का, और 15 का, और 25 मार्क्स का, या 30 मार्क्स का, विच यू विल हैव टू आंसर. सो एग्जाम में तो 4 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पेपर पैटर्न में मिल भी जाएगा. रूटीन टेस्ट में देयर विल बी 1 क्वेश्चन विच यू विल बी आंसरिंग, विच आई विल बी इवेल्युएटिंग. ठीक है? सो रूटीन टेस्ट से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, इसलिए रूटीन टेस्ट किसी को भी मिस नहीं करने हैं. ये चीज ध्यान रखना. दीज रूटीन टेस्ट दे हैव अ डेट. मैं इसकी एक डेट दूंगी, आप उन्हीं डेट में विद इन 24 आवर्स मुझे ये टेस्ट करके देंगे,
और फिर उसको मैं इवेल्युएट करके इन 4-5 days आई विल गिव इट टू यू, ओके, विद प्रॉपर कमेंट्स एंड ऑल। आपके ये मॉक्स आ गए, मॉक्स आर दी लेटेस्ट मॉक्स। देन प्रॉब्लम सेशंस, यहाँ पे प्रॉब्लम सेशंस अब आप लोगों की आ जाएंगी। नाउ दिस इज एफआर। जो सारांश ने पूछा कि मैम मुझे एफआर पढ़ना है क्या, सारांश मैंने एफआर के जो स्टैंडर्ड्स का रिवीजन है क्विक जो तुम्हें यूज में आएगा वो ऑलरेडी यहाँ डाल दिया, ओके ओके मैम। ठीक है। आप लोगों के लिए एक रिवीजन मैंने दिसंबर बैच वालों को कराया था बहुत डांट मार के, जब वो एंड मोमेंट पे बोले कि मैम रिवीजन करा दो एंड माय कैलेंडर वाज जैम पैक्ड। बड़ी मुश्किलों से 3 दिन निकाल के उनको रिवीजन कराया था। तो अब इस रिवीजन को मैं यहां से हटाऊंगी एंड आई विल क्रिएट सेपरेट वीडियोस फॉर रिवीजन और वो इसमें डाल दूंगी ताकि आप उसका एंड तक वेट मत करते रहना। रिवीजन सीरीज या रिवीजन सेशंस का फायदा कहां होगा, लेट्स सपोज आई एम मेकिंग यू रिवाइज सम स्टैंडर्ड्स, तो जैसे इनके चैप्टर कंप्लीट हुए उनके रिवीजन स्टैंडर्ड्स को देख लो, उसके लिए फरवरी पहुंचने की जरूरत नहीं है। So I will start doing that from Wednesday in the coming week. I'll start recording these revision sessions. In revision sessions को आप time दर time देखते जाना. We will not wait for February end to see the revision. क्योंकि end में क्या होता है फिर आप content देखे बिना सिर्फ revision ही करोगे फिर. And that is not a good signal. मतलब detail नहीं पढ़ी, ऊपर ऊपर का पढ़ के it's not possible to crack the exam. So any which way see the details first. फिर रिवीजन सेशंस आई विल कीप ऑन अपलोडिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको देखते जाना, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा आपका एलएमएस का कंटेंट है, इसको आप स्पीड तेज करके भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू दी टेस्ट्स। नाउ दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल। व्हाई डू यू ऑल टेक कोचिंग? ऑल मटेरियल इज देयर ऑन यूट्यूब। एक वो इंग्लिश वाली कौन सी क्लासेस हैं? दे आर वेरी गुड ऑल्सो। ओपन ट्यूशन। ओपन ट्यूशन वेरी गुड, ट्रस्टवर्दी और अच्छा भी है कंटेंट, और इवन एसीसीए के खुद की वेबसाइट पे भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पे कंटेंट है। तो तुम लोग कोचिंग लेते क्यों? फॉर इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। एंड ओवर इयर्स आई हैव रियलाइज्ड कि ये तो टेस्ट से ही आता है, यानी कि टेस्ट्स एंड मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Let me show you some samples here how I have done checking so that you are mentally prepared to give the tests from day one and you do not skip it. ये हमारा ईमेल है ऑफिशियल, ये अब चेंज हो जाएगा आप लोगों के लिए बिकॉज दिस ईमेल इज 2023 का, अब चेंज करूंगी इसको। लेट मी शो यू सम एसबीआर के रैंडम मॉक्स व्हिच आई हैव चेक्ड। चलो एसबीआर का कृतिका का खोल लेते हैं, पर कृतिका का शायद रजिस्टर पे था। एक मिनट। अच्छा, आई वांट दीज मॉक्स टू बी ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट। जैसे अब देखो अंगद ने जो भेजा है एक्सेल पे, उसके एनेक्शर्स हैं, यानी कैलकुलेटिव पार्ट इज ऑन एक्सेल एंड द राइटिंग पार्ट इज ऑन वर्ड डॉक्यूमेंट व्हिच आई इवैल्यूएट। सो अंगद हैज स्टडीड ऑल पेपर्स फ्रॉम मी, ऑल पेपर्स। ये इसका लास्ट पेपर था। नाउ सी, दिस इज हाउ आई नीड टू गिव फीडबैक एंड दीज फीडबैक्स आर नॉट कॉमन। ये सबको नहीं दिए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अंगद बहुत स्पेशल बच्चा है, मेरा मतलब है हर बच्चे का फीडबैक अलग है। किसी एक की प्रॉब्लम कुछ है, दूसरे की प्रॉब्लम कुछ है, किसी एक ने कुछ गलत लिखा है, दूसरे ने कुछ गलत लिखा है। तो आई एम नॉट गिविंग कॉमन फीडबैक्स कि भाई सब ये फीडबैक ले लो। भाई ये बहुत टाइम लगता है इन मॉक्स को चेक करने में। एवरी मॉक टेक्स 40-45 मिनट्स टू चेक। तुम जिसमें 3 घंटे लगाते हो, मुझे चेक करने में 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो इनको मिस मत करो। दिस इज व्हाट एक्चुअली यू आर पेइंग फॉर। सी दिस। एंड अंगद के तो मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, देखो हर क्वेश्चन में उसको मैंने दिया है। हर क्वेश्चन में जहां उसने सही लिखा उसको करेक्ट भी लिखा, जहां उसने गलत लिखा था वो चीज गलत भी लिखी। अब जैसे उसने यहाँ पे लिख दिया कि हम इसको मेजर कर सकते हैं या इसको मेजर कैन नॉट बी मेजर्ड लिख सकते हैं, मैंने उसमें करेक्शन लिखा नहीं यार, इसको मिड वैल्यू पे ले सकते हैं ना। तो कैन नॉट बी मेजर्ड क्यों, मिड वैल्यू पे ले लेंगे। देन मेजर एट 15 million। See, this is how it takes hell lot of time to check mocks. जबकि अंगद का तो पेपर बहुत वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स होता है। ठीक है, देख रहे हो। तो मॉक्स हो चाहे टेस्ट्स हो, आई गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू चेक देम एंड दैट इज दिस इज हाउ आई बिकम एब्सेंट व्हेन
एग्जाम से 10-15 दिन का पहले का जो पीरियड होता है, मैं यूट्यूब से और सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब हो जाती हूँ, बिकॉज आई एम स्टक हियर एंड आई फील रियली बैड when I am ready to give this much time but students are not ready to give the tests. इसलिए दो, प्लीज दो. ये बच्चे वो हैं जिन्होंने टेस्ट दिए हैं और इनको नेक्स्ट क्वार्टर आप मेरे ब्रोशर्स में देखोगे. अभी आपने कृतिका का देखा था, अंगद का पेपर मैंने खोल के दिखाया था. यू विल सी दी स्टूडेंट्स इन माय ब्रोशर नेक्स्ट क्वार्टर. तो ये टेस्ट से पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो. दैट इज गिवन बाय टेस्ट्स. ठीक है, सो दिस इज आई शोड यू. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, the course. Now, what do you get under the course? What is the fee structure, everything? Because I always announce it so that there is no confusion. The course fee is 15,000 for everyone. No discount, no zyada price, no come price, no, not negotiable at all. But what do you get under this? So that it comes as a commitment from my side also. One, you get the class access for 2 quarters. Now it is clearly written here if required. ये if required का मतलब क्या होता है? Let's suppose you are taking for March and you pass the exam. तो क्या आपको जून के लिए क्लासेस मिलेंगी? नहीं मिलेंगी. You cannot transfer this class to anyone else. So if required का मतलब होता है या तो आपने मार्च में एग्जाम दिया ही नहीं, या फिर आप क्लियर नहीं कर पाए, या फिर आप देने गए थे लेकिन पेपर ही लॉन्च नहीं हुआ. एंड ऑफ द डे, फॉर योरसेल्फ यू नीड इट इन जून because you could not get through of the paper in March because of any reason. Then only we will extend the classes for next quarter without any additional charge. लेकिन अब ऐसा होता है कि दिसंबर में जो पेपर दिया था वही क्लियर नहीं हुआ, फिर क्या होगा? तो आप अपनी एसबीआर की क्लासेस हमें स्टॉप करवा देंगे. आप बोलेंगे कि भाई दिसंबर वाला जो मेरा पेपर था ये क्लियर नहीं हुआ, मैं तो मार्च में एसबीआर नहीं दे रहा हूं. तो एसबीआर आपने बाय कर ली, महीने भर तक आप पढ़ते रहे. 18 जनवरी को आपका रिजल्ट आया. 18 जनवरी यू फेल्ड योर दिसंबर एग्जाम. ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, प्रोफेशनल एग्जाम है. आप हमें मैसेज करेंगे कि प्लीज मेरी एसबीआर की क्लास को आप रोक दो, मैं एसबीआर को जून में लूंगा. तो हम आपकी क्लास को जून तक एक्सटेंड कर देंगे. जून विल बी कंसिडर्ड एज योर फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज यू आर सिटिंग इन द एग्जाम इन जून ओनली. नो, अब आप जून में अगर क्लियर नहीं कर पाए, सितंबर विल बी योर सेकंड अटेम्प्ट. इसके लिए भी आपको कोई फीस पे नहीं करनी. सो दिस हैज टू बी देयर फॉर 2 क्वार्टर्स विद इन 9 months. इसके बाद में आप अगर आके बोलते हो कि मैम लाओ अब मेरी क्लास एक्सटेंड कर दो, बेटा वी विल नॉट डू दैट. व्हाई? भाई हमें भी एसीसीए को जवाब देना है कि कोई बच्चा पिछले 9 महीने से आपके साथ एक पेपर पढ़ रहा है. दैट मीन्स यू आर नॉट फोर्सिंग हिम टू गिव द एग्जाम. So this is a type of a force that you have to clear the exam in 2 quarters. देना ही है, अपने को लटकानी नहीं है डिग्री को, वरना मेरा क्या जा रहा है, मैं दे दूंगी तुम्हें और 4 साल के लिए एक्सेस. बट एक रीजनेबल टाइम लगाना है ना अपने को. वो रीजनेबल टाइम के लिए ही you will not pay anything additional from 15,000 for these quarters within 9 months. Is this particular system clear to everyone? बताओ, क्लियर है ये सब? चले गए क्या? Yes, ma'am. यस, चले गए. मैम क्लियर. Ma'am, अच्छा. clear है, ma'am. अच्छा, ओके. ठीक है. सो वन इज दिस 2 क्वार्टर्स की एक्सेस, देन कम्स 4 लाइव सेशंस. ये अगर मुझे जरूरत पड़ी ना यार, इस बार 5 हो सकते हैं क्योंकि मेरे पास इस बार टाइम है, तो जरूरत पड़ेगी तो 5 ले लेंगे. Routine tests are 4, which I showed you that I had taken 5 tests for the previous batches. जहां मुझे लगा कि 4 रूटीन टेस्ट्स में भी आप लोगों की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही है, आई विल गिव यू अनदर टेस्ट टू गिव. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2 mock test papers. And remember these mocks or tests I need 4 to 5 days to check. ये वो सिस्टम में नहीं होगा कि भाई टेस्ट दिया और उसका सोल्यूशन दे दिया, या फिर उसकी एक क्लास रख ली कि भाई इसमें ये करना था, इसमें ये करना था. नो, आई नीड टू चेक ईच एंड इंडिविजुअल पेपर. सो गिव मी अ ग्रेस ऑफ 4-5 days. और भी बहुत सारे काम होते हैं यार, तो 4-5 days में आई विल चेक योर पेपर्स, विल गिव बैक टू यू विद द फीडबैक. नाउ वन न्यू सिस्टम. आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग द सेम मिस्टेक्स इन द सेकंड टेस्ट. So after every test, whatever comments I am giving in red pen mark,
वो आप लोग लिख के एक पेपर पे मुझे फोटो खींच के भेजेंगे. You will feel offended कि मैम ये क्या स्पून फीडिंग है. But yes, I am sorry. I am forced to do this because students are repeating the same mistakes again and again. They don't even look at the comment which I give. मैं लिखती हूँ उसमें कि भाई नंबरिंग नहीं करनी है SBR में, 1 2 3 मार्क नहीं करते हैं, हम बुलेट्स लगाते हैं. नेक्स्ट पेपर में फिर 1 2 3. फिर मतलब क्या है पहले वाले में फीडबैक देने का? So you have to write my feedback pen paper पे, click a photograph and share it on the WhatsApp group. Sorry, I'm forced to do that. ठीक है? So this is the whole system. You need to pay us 15,000 for the course and this is what you get. So neither we can deny serving you for any of these, nor can we charge more than 15,000. Both purposes solved. And this is your planner. This is the class schedule. Although tentatively I have given 4 classes, 5th class की जरूरत अगर आपको पड़ेगी तो बीच में कहीं fit करेंगे. ठीक है? So any date you just need to give me 3-4 days to think and reschedule my calendar according to it. अब आप लोगों का जो पेपर है, please note that I also got to know about it yesterday only. इस बार टाइम टेबल चेंज हुआ है. Every Thursday used to be FR and SBR. इस बार मंडे को FR and SBR हो रहा है. So 4th March is your exam. I need 4-5 days to check your mocks. इसका मतलब सेकेंड मॉक आपको 26 फेब को दे देना है ताकि मैं आपको 1 मार्च तक ये दे दूं चेक करके. Unfortunately, this cycle has to be near now क्योंकि पेपर सबसे पहला ही है इस बार. ठीक है? So 26 फेब you will give your second mock. इससे 4 दिन पहले जगूंगी जैसे तैसे दिन रात काम करके. I'll check your papers in 2-3 days max and will give it maximum by 25th of Feb. तो 22nd Feb को in any case आपको mock 1 देना है. हम इससे लेट नहीं कर सकते. 22nd Feb आप mock देंगे, मैं 25th तक आपको चेक करके दूंगी. आप उसमें फीडबैक चेक करेंगे, मैंने क्या क्या चीजें आपको बोली है इंप्रूव करने को, एंड 26 Feb को आप दूसरा मॉक दे देंगे. इसको भी मैं आपको 3 दिन के अंदर अंदर दे दूंगी. Am I clear with the dates? We have no choice. We cannot extend it even by a single day. Okay? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let's come to the calendar. अब तैयारी की बात करते हैं. So as I said, you have to first complete the study text. Means the study material has to be completed first. Exam kit नहीं. सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 to 11 करेंगे. उसके लिए हम मिलेंगे 3rd January को. We are on 17th today. कितने दिन हो गए? 17-18 days. 11 चैप्टर करने के लिए. I think it is doable. करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेरे सेशंस देखने, जो नोट्स हैं उनको लर्न करना है बस, और कुछ नहीं करना. आप लोगों को स्टडी टेक्स्ट रीड भी नहीं करनी. प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, whoever is studying from me, please do not read the study text. यानी स्टडी टेक्स्ट आपको खरीदनी नहीं है. खरीदनी है सिर्फ कैप्लन की एग्जाम किट. स्टडी टेक्स्ट पढ़ के यू विल गेट कंफ्यूज्ड डेफिनेटली. तो कॉन्सेप्ट मेरे को दिमाग में डाल लेने दो. आंसर्स कैसे लिखने हैं वो अपन एग्जाम किट से लिखेंगे, स्टडी टेक्स्ट से नहीं. स्टडी टेक्स्ट में मैटर इतना सारा है, इतना सारा है, आप फिल्टर ही नहीं कर पाओगे कि मुझे इसमें क्या रिटेन करना है और क्या छोड़ देना है. तो हमें ऐसे मोड पे जाना ही नहीं है. इसलिए प्लीज ऑन माई गारंटी डू नॉट रीड दी स्टडी टेक्स्ट. इट्स माई गारंटी टू मेक यू पास. और स्टडी टेक्स्ट पढ़ ली तो पास होना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. इसलिए सिर्फ नोट्स लर्न करने हैं. ये 11 चैप्टर्स तक के सेशंस देखने हैं. नेक्स्ट हम मिलेंगे 20th January को, दैट इज अ वीकेंड. सो आउट ऑफ 4 क्लासेस ओनली 1 इज फॉलोइंग ऑन अ वीक डे. इसकी टाइमिंग्स हम रखेंगे बिकॉज नाउ श्रुति इज इन माल्टा. तो एक दिन पहले कौन लोग फाइनली ज्वाइन कर लेते हैं, एक दिन पहले इसकी टाइमिंग्स डिसाइड करेंगे. ये अभी टाइमिंग्स मैंने इसलिए अभी फ्रीज नहीं करी है. आई डोंट नो हु ऑल विल ज्वाइन और कितने लोगों को टाइम जोन की दिक्कत आएगी. तो वी विल फाइनलाइज दिस 1 day बिफोर द क्लास. ओके. Then 12th chapter to 23rd chapter 23 तक we will discuss on 20th Jan. That means आपके सारे concepts और PPTs learn ये हो जानी चाहिए by 20th January. उसके बाद में आपके पास पेंडिंग बचेगी सिर्फ एग्जाम किट. तो एग्जाम किट को 2 पोर्शंस में करना है.
I will give you what all exam kit questions to do till 3rd February and then what all questions to be done till 17th February. ये मैं आपको पूरा शेड्यूल बना के दूंगी, लेकिन एक बार 20th जनवरी तक पहुंचते हैं. इनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी वीकेंड्स पे, सैटरडे, तो इसकी भी टाइमिंग एक दिन पहले ही फिक्स अप करेंगे. लेकिन दिस टाइम टेबल ट्राई टू कंप्लीट द टारगेट 80% तक. अगर पूरा टारगेट कंप्लीट ना कर पाओ कोई बात नहीं, 80% कर लो. 80% भी अगर हो गया तो भी इट्स अ बिग विक्ट्री. ठीक है, गॉट इट? कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. श्रुति, रूटीन टेस्ट की डेट आई विल अनाउंस सून. ठीक है, ये जो आप लोगों को प्लानर में एलएमएस पे डाल के दूंगी उसमें ही डेट्स दूंगी. उसमें आप कुछ भी नेगोशिएट नहीं कर पाओगे. व्हाई? बिकॉज ये रूटीन टेस्ट किससे रिलेटेड होगा, उस टारगेट को कंप्लीट होने के बाद वाली डेट पे किसी पे डालूंगी. ठीक है, सो डेफिनेटली अगर कोई रूटीन टेस्ट 1 है जो किसी पर्टिकुलर आईएफआरएस से लिंक्ड है, वो आईएफआरएस जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद में ही होगा वो. तो ये जो आपका कैलेंडर आएगा, डिटेल्ड कैलेंडर विल बी देयर ऑन द एलएमएस. उसमें आपको इसके टेस्ट की डेट भी दी होगी. फर्स्ट टेस्ट में कौन सा वाला आईएफआरएस पूछा जाएगा या कौन से चैप्टर्स से रिलेटेड टेस्ट होगा वो भी उसमें मेंशन्ड होगा. ठीक है, गिव मी सम टाइम फॉर दैट बिकॉज अभी मुझे मेरे खुद के कैलेंडर को देखते हुए वो प्लान बनाना है. सबके ओरिएंटेशंस अब आज कंप्लीट होंगे. मैं कल बैठूंगी सारा अपना कैलेंडर देखते हुए कि मुझे पेपर चेकिंग के लिए स्कोप कहाँ पे मिल रहा है, और तब तक आपके चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए. उन दोनों को बिठा के, दिस टेक्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम. मुझे कल तक का टाइम देना. टुमारो बाय इवनिंग यू विल गेट अ कंप्लीट प्लानर ऑन योर एलएमएस, और उस पर एक छोटे से वॉइस नोट से एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये वाला इस दिन है, ये वाला इस दिन है. ठीक है, गॉट इट? Got it? Yes, ma'am. And we are done. ठीक है, so मुझे जो जो बोलना था वो मैंने बोल दिया. If there is anything you all want to ask, please feel free to do that. बताओ, anything which I skipped answering or anything which I skipped mentioning. Okay, so Gurumrit has a question. Should I give SBL or SBR as first P level paper? Reappeared. Okay. गुरमृत बेटा, एसबीआर के साथ एसबीएल, नो, स्ट्रिक्टली नो, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेरी कि अगर मैं सिर्फ एसबीएल और एसबीआर में से दूं, अच्छा ओनली वन. दिसंबर यू हैव गिवन एफआर, राइट? आई एम स्टिल टेकिंग अ चांस कि बाय चांस अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप एसबीआर तो फिर दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि एसबीआर और एफआर दोनों एक ही दिन पे आ रहे हैं. तो I will suggest either you start preparing for SBL या फिर SBR अगर करो तो be mentally prepared कि अगर FR नहीं निकला तो FR करना पड़ेगा मार्च में, and you will have to hold your classes of SBR for June then. पर वैसे मेरा सजेशन यही होता है कि आप अपने P लेवल को SBR से चालू करो, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल स्किल्स फिर भी मिल जाती है. SBL में प्रोफेशनल स्किल्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो एकदम से प्रोफेशनल स्किल्स आप पीपीटी, रेलेवेंट राइटिंग, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, स्केप्टिसिज्म, इन सब में एक साथ उलझ जाओगे फर्स्ट पेपर में ही. तो एसबीएल इंडियन स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट हो रहा है पहला पेपर करना. सो आई स्टिल से कि एसबीआर पहला करो. अगर एफआर नहीं निकला तो मार्च में एफआर ही दो, एसबीआर को शिफ्ट कर देना जून के लिए. ठीक है, पर पहला एसबीआर ही दो. ओके, एनी अदर थिंग बच्चों विच आई कैन गाइड यू ऑल ऑन? बताइए, एनीथिंग. मैम ये पॉसिबल है कि जैसे सीरीज में ही चैप्टर्स देखने 1 to 3 या बीच में कोई और भी पिक कर सकते हैं? आप कर लो, आगे पीछे कर सकते हो, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. ऐसा नहीं है ना? हाँ, और मैम मैं बस 2 मिनट अभी ही बात कर लूँ आपसे या पर्सनली कॉल करूँ थोड़ी देर में? कॉल कर लेना थोड़ी देर में अलीशा. और अलीशा ठीक है मैम. बस एक चीज का ध्यान रखना, कंसोलिडेशन हैज टू हैपन इन सीक्वेंस. हाँ ठीक है मैम. ठीक है, हाँ जी. मैम कंसोलिडेशन तो पूरा भूल गए मैम. ओरिएंटेशन भूल गया मतलब मैम कंसोलिडेशन भूल गए, कोई बात नहीं. सारांश, अगर ऐसा है ना कि एफआर का कंसोलिडेशन याद नहीं है, यू ऑल हैव टू रीच मी. मैं आप लोगों को अपने एफआर फोल्डर के कुछ घंटे दूंगी, फिर तो आप अपने एफआर, मेरा जो एफआर है ना उसमें से कंसोलिडेशन करोगे. ओके मैम. ठीक है, पर ये तुम लोगों को मुझे बताना पड़ेगा, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू जज कि किसने. देखो, मैं बाय डिफॉल्ट इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि कई बार बच्चे ने एफआर मुझसे पढ़ी नहीं होती है,
फिर मैं जबरदस्ती एफआर को अगर एसबीआर के कोर्स में डालती हूँ ना, बच्चा बाय डिफॉल्ट उसको देखेगा ही, एंड इट कैन लीड टू कंफ्यूजन, क्योंकि पता नहीं पहले वाले टीचर ने उसको कैसे कंसोलिडेशन पढ़ाया है, फिर मैं अपने स्टाइल से पढ़ा दूं, इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट कंटेंट नहीं डाला हुआ। आप में से किसी को भी अगर ये चीज लग रही है कि मुझे एफआर का कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे बताना, आई विल गिव यू सम आवर्स ऑफ माय एक्सेस क्लासेस, एफआर की क्लासेस, लेकिन मुझे बता देना, मैं बाय डिफॉल्ट नहीं डालूंगी उसको। प्लीज डू नॉट अज्यूम कि मैम आपको पता ही होना चाहिए, ये तो बेटा उसका रीजन है कि पता नहीं तुम पीछे किससे पढ़ के आ रहे हो। आई कैन नॉट बाय डिफॉल्ट पुट दोज क्लासेस इन योर फोल्डर, तुम देख के कंटेंट घबरा जाओगे। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई, डू नॉट रीड टू मच। आई विल बी फ्रैंक विद यू, देखो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन इन डेप्थ स्टडी एंड बाल की खाल निकालना। मैं टेक्निकल आर्टिकल्स भी पढ़ लूं, मैं कैपलन भी पढ़ लूं, मैं बीपीपी भी पढ़ लूं, मैं स्टडी हब भी पढ़ लूं, मैं इसका नतीजा बता देती हूँ। बहुत भारी वर्षा में क्या होता है? फ्लड आता है। डू नॉट ड्रिजल ऑल्सो, डू नॉट गो फॉर हैवी रेन ऑल्सो, कीप अ बैलेंस। तुम्हें चीजें आनी चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, लेकिन उसी चीज के ऊपर 50 आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू विल आस्क मी कि मैम टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ने हैं, मैं बोलूंगी नहीं पढ़ने। व्हाई? ऑल द टेक्निकल आर्टिकल्स आर ऑलरेडी एम्बेडेड बाय कैपलन। कैपलन की इतनी मोटी किताब बनी कैसे है? कुछ टेक्निकल आर्टिकल से उठाया है, कुछ एग्जामिनर्स के कमेंट से उठाया है, कुछ आईएएस से उठाया है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और कमेंट्रीज आती हैं उनसे उठाया है। दिस मटेरियल इज सफिशिएंट, डू नॉट ट्राई टू सेल ऑन टू मेनी डॉक्यूमेंट्स एंड टू मेनी बोट्स, इट्स डिजास्ट्रस। हम सीए फाइनल में भी जब पढ़ते थे ना, हम एक ही रेफर करते थे ऑथर, और मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो 4-4 ऑथर्स की बुक पढ़ रहे हैं। यार जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा, 50 सोर्सेस से डेबिट क्रेडिट और क्रेडिट डेबिट नहीं हो जाएगा। प्रॉपर्टी आईएएस 16 में ही आएगी। तुम 50 ऑथर पढ़ोगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं तो प्रॉपर्टी को इंटेंजिबल एसेट में लेके जाऊंगा, नहीं मैं तो प्रॉपर्टी को डेटर मानूंगा, पेबल्स मानूंगा। ऐसा नहीं होता। तो प्लीज रेस्ट्रिक्ट योर पढ़ाई टू वन फोकस्ड एरिया। मुझे कैपलन करनी है, उसके अलावा इसकी एग्जाम किट करनी है, दैट्स इट। अब मुझे यूट्यूब पे सीए वालों की फाइनल का रिवीजन नहीं सुनना, क्योंकि वो अलग लेवल से पढ़ रहे होंगे, आप अलग लेवल से पढ़ रहे होगे, दोनों का मैच ही नहीं होगा। तो इसलिए अपने लिए आया बैल मोजेमार नहीं करना है। प्लीज डू नॉट इनवाइट मुसीबत एंड टू मेनी रिसोर्सेज फॉर योर सेल्फ। देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु गिव मी अ कॉल कि मैम मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मैंने कहा यार यू नीड टू ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं सीधा यही बोलूंगी, अगर तुम्हें एक स्टैंडर्ड आता है तो उसको 50 जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल आर्टिकल्स में क्या है वो मैं ऑलरेडी पढ़ाई करके डाल चुकी हूं फोल्डर में, तो तुम्हें सिर्फ फोल्डर कंप्लीट करना है और स्टडी टेक्स्ट एग्जाम किट कंप्लीट करनी है, बस ये करना है। मत इधर उधर ज्यादा करने पे भागना। नो भारी वर्षा प्लीज, नो फ्लड ऑफ रिसोर्सेज नीडेड। ठीक है, रेलेवेंट पढ़ो, काम का पढ़ो और ढंग से पढ़ो। एम आई क्लियर ऑन दिस? लाउड एंड क्लियर बताओ। यस मैम। मैम मुझे एक डाउट था। हम्म मैंने एफआर आपसे क्लासेस नहीं किया था, तो मुझे अभी जैसे एसबीआर में काफी सारे चैप्टर्स एफआर से रिलेटेड है, तो मुझे एफआर के वो सारे कंसेप्ट फिर से मीन्स रिफ्रेश करने होंगे क्या? सो जो ही मैंने कुछ रिवीजन डाला है, कुछ तो बात उससे बन जाएगी। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आए, आपने एफआर कब पढ़ा था? एफआर 3 क्वार्टर्स हो गए मैम। तो फिर मेरे ख्याल से तो कुछ याद ही नहीं होगा आपको। यस मैम, मुझे याद नहीं है। बस तो बहुत बढ़िया है, याद होता है तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जो चीज लगे कि भाई रिवीजन देखने के बाद भी, और मैम वैसे तो मैंने क्लास में 0 से ही पढ़ाया है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये अजम्पशन लगाई है कि भाई ये तो तुम एफआर से देख लेना। बस ये कंसोलिडेशन ओके। में ऐसा मैंने किया है कि भाई आपको एफआर का रिवाइज करके आना होगा, क्योंकि एसबीआर में पूरे कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने को है नहीं, पीएनएल या बैलेंस शीट बनाने को, लेकिन बाकी ओके सारे मैम। स्टैंडर्ड्स में मैंने स्क्रैच से ही पढ़ाया है। तो जरूरत ओके लगे मैम। मुझे बताना, तुम्हें भी एफआर का एक्सेस दे दूंगी, थोड़ा सा फीस अलग नहीं लूंगी, ओके मैम। तुम्हें देने हैं तो दे देना। ओके। मैम ओके मेरा मैम, भी ना थैंक यू। सिचुएशन सेम है, लाइक मैंने भी दिसंबर अटेम्प्ट दिया था एफआर का लास्ट ईयर। तो
मतलब इट्स एफआर को तब रेफर करना है ना जब आपके लेक्चर्स में थोड़ा वो हो कि जब पॉइंट जरूरत लगे रिकॉल नहीं तो हो रहा। हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हाँ जी। ठीक है, जब जरूरत लगे तो ही करना। मैंने 99% जगह सब जगह कंप्लीट कराया है, वो मतलब पीछे से ही करवाया है, जहां से स्क्रैच से हो सकता था वहीं से कराया है। लेकिन अगर कहीं पे मैंने रेफर कर दिया है एक दो जगह पे कि भाई ये एफआर से रिलेटेड है और तुम्हें वो याद नहीं आ रहा है, प्लीज फील फ्री टू राइट दैट ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। और ग्रुप पे लिखना, मुझे इंडिविजुअल मैसेज मत लिखना, मेरे पास अभी भी 200-250 मैसेजेस पड़े हैं विच आर अनआंसर्ड, तो वो मेरे लिए व्हाट्सएप पे बहुत हैवी हो जाता है। इसलिए ग्रुप पे लिखना कि मैम ये याद नहीं आ रहा, प्लीज इसकी एक्सेस दे दो। आई एम टेलिंग दिस ऑन पब्लिक डोमेन कि भाई एसबीआर के बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगी, सबको दूंगी, किसी एक जने को नहीं दे रही हूँ कि भाई मैं खाली तुम्हारे साथ ही ये बेनिफिट ऐड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन हु इज स्टडीइंग एसबीआर। ठीक है। ओके मैम। ठीक है। थैंक यू एनीथिंग मैम। एल्स, एनीथिंग एल्स गर्ल्स? श्रुति, माल्टा में कैसा मौसम है? बिल्कुल दिल्ली जैसा मौसम है, गर्मी भी भर के पड़ती है, ठंड भी भर के पड़ती है, बिकॉज इट्स एन आइलैंड कंट्री। तो ओ, ऐसा है। तो आइलैंड तो इट्स अ यार वेरी टाइनी। रीजनेबल होनी चाहिए ठंड। हाँ, बट एक्चुअली द थिंग इज कि ऐसे सिसिली से यहाँ पर सीधा ओशन है, तो कोई ना ब्रीज ठंडी। क्या बोलते हैं, या मतलब विंड को ना स्टॉप ब्रेकेज नहीं मिलता, तो हवाएं बहुत तेज चलती हैं। मतलब तुम्हारे तो यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है बेसिकली। बट पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है सच हम्म। में। दिल्ली में पॉल्यूशन का क्या हाल है? बस पूछो मत, गला ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। अरे यार। नो, इट्स ऑन अलार्मिंग स्टेज एंड नाउ अब फॉग भी होने लग गई ना, तो इट्स विंड स्पीड इज ऑल्सो जीरो। सो जो भी नीचे क्लॉगिंग होती है वो वही हो जाती है, इट्स नॉट गोइंग अवे। हम्म। पर कोई बात नहीं, चलो, पार्ट पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ दिल्ली। यस। चलिए जी, एनीवेज, सो बच्चों, यू ऑल नीड टू स्टार्ट स्टडिंग नाउ। कमर कस लो। अपनी न्यू ईयर पार्टी को एक दिन पे ही रेस्ट्रिक्टेड रखना, प्लीज डू नॉट डिवोट 5 days फॉर इट, ओनली 1 day। और खींच के पढ़ाई करनी है। मैं पेपर चेक करने को तैयार हूं, तुम पेपर देने वाले बनना। ओके ओके, चलो। ओके गाइज, चलिए जी, सो सी यू ऑन दी फर्स्ट प्रॉब्लम सेशन। ये पूरा कैलेंडर विल बी अपलोडेड ऑन दी एलएमएस एज वेल एज दी व्हाट्सएप ग्रुप, बट टुमारो। अब मैं छुट्टी पे हूं बिकॉज आई एम टेकिंग ओरिएंटेशन सिंस यस्टरडे। नाउ आई नीड दैट ब्रेक। तो कल मिलेंगे, कल बात करेंगे। ओके, चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय मैम, थैंक यू। बाय मैम। बाय बाय।